Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter in commerce, that is chapter 5, staffing. As we have studied about the function of management of chapter 3, planning, and chapter 4, organizing, right? These are the two functions of management. Now the third function of management is your staffing. So in this chapter we are going to studying about the staffing, meaning of staffing, characteristic of staffing, what is the process of staffing the employees, and how to select the employees, how to give the training and development. These are the topics which we are going to discussing in this video, right? So let us see about the staffing. What do you mean by the staffing? The introduction part is given. After industrial revolution, industries started production on a large scale. After as many as industries expanded, in the large scale, the production has been started. Initially, there was no proper system for production. Initially, in beginning, there was no proper system for the production. System of earning more profit as less cost begin. At that time, the owner wants only a profit, so they want only a profit with minimum cost. These were the main objectives of the owner, right? So to get maximum profit and minimum cost should be expanded. As a result, exploitation employees begin. So because of these things, to earning more profit and profit, their expenses should be lost, right? This was the motive of the owners, and because of that, employees are exploiting, and they are cheated. At the end of 19th century, dynamic management leaders realized that the production sensitive staff is more important. After 19th century, at the end of 19th century, the management leaders has been realized that the production is not important, but staff, the employees are important rather than the production. They are also realized that the machine do not work automatically, but employees operate them. एंड उनको ये भी रियलाइज हुआ कि मशीन ऑटोमेटिकली तो काम नहीं करता, उनको ऑपरेट करने के लिए भी, मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए भी एम्प्लॉयज़ यानी कि स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है. एज अ रिजल्ट दे आर रियलाइज दैट फॉर द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड ट्रेनिंग शुड बी नेसेसरी. सो इसीलिए रियलाइज हुआ कि स्टाफ इम्पॉर्टेंट है, मशीन इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो इसीलिए वो लोग ने क्या किया, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने के लिए, यानी कि उनको जॉब पे रखने के लिए एक सिस्टमेटिकली एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करो. जैसे उनको रिक्रूट करना, यानी कि उनको जॉब अट्रैक्ट करना. दूसरा, उनको एप्लीकेशन यानी कि जॉब के लिए सिलेक्ट करना, उसको अपॉइंट करना. आगे प्रमोशन देना, अगर वो बहुत साल से काम करे तो उसको उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको प्रमोशन देना, और जब ज़रूरत पड़े तब ट्रांसफ़र करना, और प्रॉपर ट्रेनिंग देना. सो इट शुड बी अ सिस्टमेटिकली. ठीक है, तो ये सारे जो लिमिटेशंस है जिसकी वजह से उनको रियलाइज हुआ कि स्टाफ इम्पॉर्टेंट है, मशीन नहीं. क्योंकि मशीन्स को भी चलाने के लिए हमें स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट स्टाफ शुड बी सिलेक्टेड ऑन अ साइंटिफिक सिस्टम. यानी कि आप जब भी एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हो, अपॉइंट करते हो जॉब के लिए, तो एक प्रोसेस है कि हाउ टू अपॉइंट द एम्प्लॉयज़ फॉर अ जॉब. So let us continue with the meaning of staffing. The function of staffing is also as important as other function of management. Now there are the planning, organizing, right? Now management begins with the planning, right? So after that organizing. So these two are the functions are very important. Still staffing is also important from the other of function of management. जैसे बाकी सारे फंक्शंस है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, दीज आर ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो वही इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना स्टाफिंग भी उतना ही फंक्शंस, मैनेजमेंट के फंक्शंस में इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. इन द पास्ट ह्यूमन एलिमेंट वॉज नॉट गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस. पहले के टाइम पे ओनर्स ह्यूमन एलिमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे. उनका मेन मोटिव क्या था कि भाई प्रॉफिट कमाना है और कम कॉस्ट होना चाहिए, एक्सपेंस कम होना चाहिए और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए. और उन्हें कोई मतलब नहीं कि एम्प्लॉयज़ का क्या प्रोग्रेस हो. प्लानिंग ऑफ बिजनेस माइट हैव डन
in best possible manner and formation of organization also might have been done properly, but if the selection and training of the person is improper then the organization cannot be successful. यहाँ पे बोला कि प्लानिंग भी आपने अच्छे से कर लिया, उसको अरेंज भी कर लिया, प्लानिंग के बेसिस पे आपने ऑर्गेनाइज भी अच्छे अरेंज सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ भी अरेंज अच्छे से कर ली, बट इफ़ यू डिड नॉट सेलेक्ट प्रॉपर स्टाफ or you did not give a proper training to the personal means the employees, then your organization cannot be successful. The success of an organization depends upon the efficiency and attitude of its employees. Now organization का success depend करता है आपके staff पे कि आपका staff कितना efficiency और कितने अच्छे होने चाहिए. Staffing is an activity of maintaining relation with the employees of organization. Staffing एक activities है जहाँ पे रिलेशंस यानी कि एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप मेंटेन रख पाए कि कौन सुपीरियर है, क्या सबॉर्डिनेट है. ठीक है, सो मीनिंग कंसेप्ट क्लियर हुआ. इन द ऑर्डिनरी सेंस इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड द एक्वायरिंग एम्प्लॉयज़. एक्वायरिंग एम्प्लॉयज़ यानी कि हायर द एम्प्लॉयज़, गिव देम अ ट्रेनिंग, मेंटेन देम इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपकी फैसिलिटी से खुश रहेंगे, अगर वो उसका जॉब सेटिस्फाइड होगा, ही विल स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इन द वाइडेस्ट सेंस इट इंक्लूड्स द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड पोस्ट रिटायरमेंट. दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. हाउ टू अपॉइंट द एम्प्लॉयज़. तो पहला स्टेप आता है रिक्रूटमेंट, मतलब टू मेक देम एम्प्लॉय फॉर द जॉब. जिसको एम्प्लॉयज़ को मेक देम एम्प्लॉयज़ यानी कि टू मेक द एम्प्लॉयज़ टू make them apply for the job. It means a recruitment. Selection matlab to select the employees from the application which is received for a company. After that selection, give them a training properly, and if the person who are working for a long time, then give the promotion according to his capability, and whenever the required, the employees can be transferred from one place to another. And also after the age of 60, post retirement should be given benefit. So these are the process of the staffing. Now let us see the continues about the characteristic. First characteristic is important function of management. Staffing is also an important function of management, like planning, organizing, directing, coordination and controlling. स्टाफिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी के फंक्शन जो इम्पोर्टेंस है वैसे ही स्टाफिंग भी इम्पॉर्टेंस है. जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, और ये सारे फंक्शन इक्वल इम्पॉर्टेंट जितना स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड है पेरेनियल प्रोसेस. पेरेनियल प्रोसेस का मतलब है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एम्प्लॉयज़. क्या कोई भी कंपनी एम्प्लॉयज़ के बिना काम कर पाएगी? नहीं. As long as the organization's activity exists, employees and staff will also exist. जब तक organizations है, जब तक company है, तब तक employees भी वहाँ पे exist करेंगे. Third है concern with human relation. The main objectives of staffing is to acquire मतलब to obtain the employees and make them best use of them. Now these functions depend on the activities of employees. यानी कि ये स्टाफिंग का फंक्शन सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए काम करता है. ठीक है, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना जॉब पे, उसको सिलेक्ट करना उस जॉब के लिए, उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रमोशन देना, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट देना. दीज ऑल द प्रोसेस आर ऑफ स्टाफिंग. तो ये स्टाफिंग फंक्शन एक ह्यूमन रिलेशन के बेसिस पे यानी कि एम्प्लॉयज़ पे. एम्प्लॉयज़ आर द ओनली लिविंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये कौन सा एम्प्लॉयज़ क्या है? एक लिविंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. दे हैव द फीलिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. उनकी भी कुछ फीलिंग्स होती है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. एज इट इज़ रिलेटेड विद द ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमनिटेरियन बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड टुवर्ड्स देम. तो ये किसके बेसिस पे? स्टाफिंग फंक्शन ह्यूमन एलिमेंट के बेसिस पे, क्योंकि ये यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए एक्टिविटी करते हैं. फोर्थ पॉइंट है स्टाफिंग इज एन डायनामिक प्रोसेस. डायनामिक प्रोसेस यानी कि बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर स्टाफिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम डायनामिक. अगर आपके पास प्रॉपर एम्प्लॉयज़ यानी कि प्रॉपर स्टाफ है तो आपकी सारी कंपनी की एक्टिविटी स्मूथली प्रोग्रेस होगी. डायनामिक मतलब सारी एक्टिविटीज़ का डेवलप यानी कि प्रोग्रेस होगा, आगे बढ़ेगी. फिफ्थ पॉइंट रिलेटेड विद द अदर मैनेजर फंक्शन. अदर मैनेजर फंक्शंस लाइक अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड विद द स्टाफिंग.
जितने भी सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमने पोस्ट क्रिएट किया था, डिपार्टमेंट क्रिएट किया था। अब उस डिपार्टमेंट में क्या करेंगे, हम लोग स्टाफ अपॉइंट करेंगे, और यही स्टाफ एक दूसरे से कोऑर्डिनेट और कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है स्टाफिंग से। 6 पॉइंट है वाइड स्कोप। स्टाफिंग इट इज़ नॉट अ मर्ली activity for the labor welfare but is also concerned with the acquiring, training and maintaining the person and also work for the development। ये स्टाफिंग का सिर्फ इतना ही नहीं कि एम्प्लॉयज़ को आपने अपॉइंट कर लिया, बात ख़त्म, नहीं, उसके अलावा ट्रेनिंग करना और वही स्टाफ को मेंटेन रखना लॉन्ग टाइम के लिए, ये भी हमारी एक एक्टिविटी है, क्योंकि यही लोग हमारे डेवलपमेंट के लिए काम आने वाले। लास्ट पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि यहाँ पे बोला है कि द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टाफ इज़ नॉट एन एक्सपेंस बट एन इन्वेस्टमेंट। यानी कि ये एक्सपेंडिचर नहीं है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने के लिए हमको इंटरव्यू, ये सब चीज़ के लिए खर्चा तो लगता है, ठीक है, बट एक इन्वेस्टमेंट है। अगर बेस्ट स्टाफ आपके पास आ गए ना थ्रू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, वो आपकी कंपनी के लिए बेहतर ही होगा। तो एक टाइम का एक इन्वेस्टमेंट है जो हमारे कंपनी के लिए बेनिफिट है, लेकिन एक्सपेंडिचर बिल्कुल भी नहीं है। वॉट एवर द एक्सपेंस इनकर्ड फॉर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन फॉर द एम्प्लॉयज़, इंटरव्यू फॉर द एम्प्लॉयज़ बाय गिविंग देम अ ट्रेनिंग, दीज आर द एक्सपेंसेस, बट अभी के टाइम पे वो एक्सपेंस नहीं है, बट इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मशीन कब तक चलने वाला है, बट हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टाफ उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उसको ऑपरेट करने के लिए कंपनी कैसे ऑपरेट होती है विदाउट एम्प्लॉयज़, तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है। सो इट इज़ जस्ट स्टाफिंग इज़ अ just an investment for the business. I hope you guys understand about the meaning of staffing and the characteristic of staffing. Thank you.